just created a page without any intention. सिर्फ intention ये था कि just to share my knowledge, and this is how I started. But luckily I got a very good support from the people. I was just building the community, लेकिन I was not monetizing at that time क्योंकि मुझे नहीं पता था कि online monetizations कैसे करते हैं. There is a lot of opportunities, तब भी थी, अब भी है और कभी भी खत्म नहीं होने वाली. There is no end to the digital industry. क्योंकि अब हर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, सारे एजुकेशन ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन राइट नाउ. सो द थिंग इज यू शुड स्टार्ट राइट नाउ. यू शुड नॉट थिंक व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. इट्स नॉट लाइक कोई मैजिक होता है. आपको एक स्ट्रैटेजी मैंने दी कि इंस्टाग्राम पे 2 स्टोरी डालो और आपका कोर्स 50,000 लोग खरीदेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. देयर आर lots of things which you need to do strategically with a right mindset, and that's only जो आपको पूरा हेल्प कर सकता है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अगर कोई इंसान को ऐसा लगता है कि आपको लर्निंग नहीं करनी है, तो दैट मीन्स आप ये समझ लो कि यू विल बी स्टेइंग एट द पॉइंट ऑफ 10,000 15,000 फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. दैट्स इट. यू हैव टू लर्न एवरी डे. यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स एवरी डे. आफ्टर एवरी वीक समथिंग इज गोइंग टू कम एंड यू हैव टू लर्न दिस. पहली चीज. दूसरी चीज, हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा's टॉक शो. एंड आज का हमारा एपिसोड है एक बिजनेस कोच के साथ जो डिजिटली लोगों को अपना बिजनेस सेटअप करना सिखाती हैं, एंड शी इज नन अदर देन शिवानी. सो आज हम उनसे बात करेंगे बिजनेसेस के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस एंड ऑनलाइन बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं. तो इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर कोच हु वांट टू सेट अप ऑनलाइन बिजनेस, तो ये एपिसोड आपके लिए है. कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग. तो कैसा लग रहा है शिवानी आपको हमारे शो पे आके? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. ओके, ग्रेट. तो शिवानी, शुरू करते हैं आपकी जर्नी से. If we'll talk about the online journey, तो जब लॉकडाउन आया था, तो in lockdown only when everybody started jumping on Instagram and started creating their pages. So anyhow, like I was very much inspired by Neil Patel and everyone. तो मैंने ऐसे ही अपना पेज बना लिया on Instagram to simply see कि how the things work. And I just created a page without any intention. सिर्फ intention ये था कि just to share my knowledge. That whatever I know, I'll be sharing my knowledge, and this is how I started. But luckily, I got a very good support from the people, but still, I was not earning anything. Like I was just building the community, लेकिन I was not monetizing at that time क्योंकि मुझे नहीं पता था कि online monetizations कैसे करते हैं. Though I was just giving the free consultations, and then later on started paid consultations as well. But that was a very low cost. Like I was not earning enough from that. Then in 2019 only. I started my freelancing journey in last 2018, I guess in November or December. Then how I started earning the real money, like I just got some of the leads in Instagram only to handle the project. So I started with a very low cost क्योंकि बहुत ज़्यादा influence और brand नहीं build था. And that's how I started freelancing. And after freelancing, what I was doing, I was very much stuck in freelancing, but I'm always the front end person. Like मुझे back end का काम करने में इतना अच्छा नहीं लगता. I always love to come on the camera, talk to people, and to teach people. So that was my purpose. And with freelancing, it was something missing. So then I decided that I need to change it. Like I don't want to do that for rest of my life, the freelancing work. And then where I decided that I wanted to go for coaching. Like I wanted to build my career and my business in coaching, where I can teach people, I can change people's life. And so I was simply searching it, though I was searching it from last so many years, but like so many months, but I couldn't do it on myself. Then I finally decided, I invested in one of my mentors, and then I learned each and everything, that how the coaching business run and how you can build a coaching business. So that's how I learned, and then I launched my own program, and now I'm working with my own clients and everything, and my clients are getting good results now, but I am still learning, and I'm still is in the journey of the coaching. ओके, ग्रेट. वाओ, Yes. नाइस जर्नी. तो शिवानी, एक्चुअली आप जब बोल रहे थे तो थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही थी शुरू में. तो एक बार फिर से जानना चाहेंगे, आप क्या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से ही हो आप, या फिर आपने करियर दूसरी स्ट्रीम से आपने शुरू किया? मुझे जाना था बैंकिंग सेक्टर में. आई वांटेड टू गो फॉर बैंकिंग सेक्टर, बट आई कुडंट गेट द जॉब इन बैंकिंग सेक्टर.
and you can say that जैसे destiny ने plan किया होता है, तो I simply got a job with reference. Like there was one friend of my brother, like was a brother's friend. She was like that she was having some internship in her company, so she simply said to my brother that if you if your sister is searching for jobs, so she can work as an intern in our company in digital marketing. And that time I was Okay. like, I don't know anything about digital marketing, I don't want this job, so I rejected the job. But somehow after that I got like मुझे job नहीं मिली थी banking में, so I said okay, let's start with digital marketing internship and let's see कहाँ जाता है. So I started my journey with digital marketing only, और मैंने वहीं से ही जॉब स्टार्ट किया था, और अभी तक भी मेरी जर्नी इन डिजिटल मार्केटिंग में ही है. सो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री आई स्टेप इन आफ्टर माय ग्रेजुएशन, एंड आई लव इट. लाइक नाउ आई एम ओनली इन डिजिटल मार्केटिंग, सो आई लव दिस इंडस्ट्री बेसिकली. ओके ग्रेट. तो शिवानी, जब आप एंटर किया आपने डिजिटल मार्केटिंग, इट्स आई गेस 2019 शायद आपने If online, enter you किया, will right? say online I came in 2020. I created this page in August Okay. 2020. Yeah. ओके, सो 2019 में आप इंटर्नशिप कर रहे थे, राइट? Exactly. That time I was doing the ओके. English. सो अगर बात करें तो मतलब डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका था, बट अगर बोले तो लॉकडाउन के वक्त कुछ ज्यादा ही डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुकी है अभी. मीन्स लाइक जिसको भी नहीं पता था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उनको भी पता चल चुका है, लाइक लाइव सेशंस एंड ऑल. मेरा बोलूं तो मैं कभी लाइव नहीं जाती थी, लाइक आई जस्ट गो ऑन फेसबुक एंड इंस्टा पे मैं कभी लाइव गई ही नहीं थी. इवन आई क्रिएटेड माई पेज बट आई नेवर वेंट ऑन ड्यू टू लॉकडाउन. आई स्टार्टेड and it's got the awesome results and I think एक revolution ही है ये कि मतलब प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी मिली हमें. तो शिवानी, पूछने का ये है कि उस समय जब आप एंटर किए थे इस इंडस्ट्री में, तो कैसा था और अभी क्या स्कोप लगता है आपको? अभी क्या चल रहा है? उस समय क्या लगता था आपको? आप तो उस समय नए नए थे इंडस्ट्री में. True. See, when I entered the industry, like I'll just talk about my online journey, right? Yeah. Like when I entered in 2020, already lockdown में बहुत सारे लोग आ चुके थे. Like there was many people who were already doing it. But now अगर आप आज की बात करो, so there is a lot of opportunities. तब भी थी, अब भी है, और कभी भी खत्म नहीं होने वाली है. Because people are coming, people will be coming. There is no end to the digital industry. It's only like till 2025 it will be growing. It will be like this is a market which is not saturated right now. There is lots and lots of opportunities क्योंकि अब हर business online आ रहा है. सारे businesses online है, सारे education online है, shopping online है. Like everything is going online right now. So there is endless opportunities. तब भी endless opportunities थी और अब भी endless opportunities है. So it's just that like the thing is you should start right now. We should not think that आगे क्या होगा या what is the right time to start. Like now is the right time to start. Like whenever, like wherever you are, this is the right time to start. That's it. जब भी आप start करो, and it's not about competition. Like we feel that there is a lot of competition because we are dealing in the industry. अगर आप बाहर के लोगों से पूछोगे, they are not aware of the Instagram marketing. There are many people who don't know what is Instagram, like how to run Instagram. Like I get so many messages in a single day, right? That how to increase followers and how this Instagram marketing works. Because we are in that same industry, the whole day we are dealing with the same community people, so we feel that there is a lot of competition. But if you will see outside of the world, there are billions of people in the world, so there is no competition. Actually there is no competition, so there is the right time to enter in this world, and there are endless opportunities. Like there's an infinite opportunities, I'll say. कुछ भी limit नहीं है यहाँ पर earn करने का. Like you can earn any amount you want. It depends on your hard work. That's it. या राइट. अगर इंटरनेट की बात करें तो शायद इंटरनेट अभी तक लाइक अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो शायद 4% या 6% लोगों तक ही पहुंचा है इंटरनेट. अभी तो इंटरनेट पूरी तरह से रीच भी नहीं हुआ है. तो मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तो रीच अभी बहुत होनी बाकी है. मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है. हाँ, एंड द बेस्ट थिंग इज कि शायद पैंडेमिक आया और उसके बाद चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज शायद 5 या 6 साल बाद होने वाली थी वो पहले ही हो गई. मीन्स इतना डिजिटल मीन्स इतनी फास्ट ग्रोथ हुई है, मतलब हर चीज बहुत ज्यादा. पहले इतना बैरियर था. लाइक वी वर नॉट एबल टू रीच टू द इंटरनेशनल क्रिएटर्स. लाइक
ऐसे इतनी ज्यादा कोई कोचिंग्स इन सारी चीजें नहीं होती थी, बट नाउ इफ यू विल सी दैट वी आर टेकिंग द कोचिंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिएटर्स एज वेल, Right. right? They are also getting the Indian audience and सारा कुछ global. Like I also have some global students, like they are from another country. So I could have never even imagined that the people, like some people I met on Instagram, they paid me the money, they entered in my program, and we are like family right now. Like they are from another country, we have never met, and we are doing business, we are making money. Like it's so amazing. If you will see it, it's so amazing. Like ऐसा मैंने I didn't even imagine. Like we have never met and we are doing such a great business. So that's the opportunity in the online world. You can reach to Right. any level and to anywhere. Like there's no limit. राइट. सो शिवानी, 1-2 साल में मतलब जो बूम आया है हमारी डिजिटल इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली डिजिटल कोचिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बूम हुई है. यू नो, नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग बट एज वेल अदर कोचिंग्स हैं, यू नो, लाइक माइंडसेट कोचिंग, हैप्पीनेस कोच, देयर आर लॉट ऑफ कोचेस. Coaching और industry I is booming right now. Like वो भी हो रही है बहुत ज्यादा, अभी ट्रेंड में आ रही है. This is the Yeah. industry which is coming in trend right now. यस, अगर मैं बोलूँ तो शायद 3 या 4 साल पहले 2017 तक पीपल डजंट नो अबाउट द कोचेस. मीन्स लाइक कोच क्या होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स पता थे बेसिकली, और ज़्यादा लोगों को इतना नहीं होता था कि कोचेस भी होते हैं या बिजनेस कोच होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं. बट अभी यू नो लोग शायद डिजिटल एक्सपोजर की वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है. सो लोगों को लगता है कि उनको भी कोच बनना चाहिए. मतलब हर कोई अब ये भी है कि कोच बनना चाहता है, राइट? उनको लगता है कि इट्स वेरी इजी. मीन्स लाइक यू नो, कोच बन जाओ, अपना कोर्स बना लो और सेल करने लगो. तो शिवानी, एज आप इस जर्नी में रहे हो और आपने ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो मैं ये जानना चाहूंगी पहले तो कि कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिली वालों का, यू नो, जब आपने पेज शुरू किया और यू नो अपना सब कुछ नॉलेज शेयर करना शुरू किया, एंड यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट. और कभी कभी ऐसा होता है, यू नो, लाइक जब हम अपना पूरा एफर्ट डाल देते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो कभी कभी हमें यू नो निराशा हो जाती है, डिसहर्टेंड हो जाते हैं हम. तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि Exactly. लगाओ? Like, see, this is my second page. My first page got banned after 5,000 followers. So, Okay. my first page जिसमें 5,000 followers थे, वो पेज बंद हो गया था. Like Instagram ने, मतलब Instagram की तरफ से बंद हो गया था कुछ चीजों की वजह से. So that was my first failure, like which I've experienced in the online journey, because 5,000 followers are so much, बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, and I was not having any data of those 5,000 followers, and I lost my page in single second. All the content, all the data, all the followers. Like it felt me like somebody has taken my identity from me. Like there was no page, so there's no me, right? So that time I decided that I'll not come back on Instagram. So that was my first failure, first of all. But because of some people, बहुत सारे ऐसे लोग थे, they messaged me on another platforms, like on my YouTube channel, on my Facebook, that we are missing your content and you should why your page is not showing to us. Like just because of 4-5 people, I gathered that energy again. And yes, my family was very supportive all the time when I created the page, that time as well and now as well. So they supported me and they said you should create it again. So this is my second page which I created, and again I just build up my community and build up my followers and my influence in each and everything. So see, failures are something which is part of life. I am a coach right now. First of all, I just love rejections. When I started, like when I faced the first rejection, I was like, the person I just got rejections 5-6 times, and I was like, people are not buying my program, that means I'm shit, I can't do this. Okay, this is not the thing which I wanted to do, and I stopped it. But when, because of my coach, like my coach was with me, okay, and he was with me in the whole journey. He pushed me that nahi karna hai, you have to do it, hoga, and I kept doing it, and now I feel like I really love rejections now. Like people are going to give you the rejections. It's not that कि आप कितने भी बड़े successful आदमी को देख लो, कितने भी बड़े successful इंसान को देख लो, they all have experienced the failures. और अगर आपको failures नहीं मिले हैं, तो it means you're doing something wrong in your life, that everything is going perfect. That's not going to happen. Many people come to me and they say that हमें 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा क्या, 1 महीने में हम इतने डॉलर्स का बिजनेस कर सकते हैं क्या.
तो आई ओनली आस्क देम वन थिंग दैट इफ यू रियली फील दैट आपने इतनी मेहनत करी हुई है, आप पिछले बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हो और आप मेहनत करने को तैयार हो, तो डेफिनेटली आएगा. बट व्हेन यू टेक दिस माइंडसेट कि इतने टाइम में आ जाएगा क्या, 20 दिन में मुझे इतने डॉलर्स आ जाएंगे, it all depends on your hard work. It all depends on your, like, whatever you're putting, the only amount you're going to get. So it's only that. And rejections and failures, so definitely वो तो आएंगे ही आएंगे. हर किसी की लाइफ में होते हैं. I still face rejections, but now I love them. Like, I really don't care if anybody rejects me. राइट. सो जैसा कि आपने बोला कि हर किसी के लाइफ में हर्डल्स, फेलियर्स होते हैं, तो एकदम सही है. मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी मतलब पर्सन, चाहे वो एक्सट्रीमली रिच रहा हो या फिर उसका बहुत अच्छा बैकअप सपोर्ट रहा हो उस इंडस्ट्री में, या फिर उसने बहुत नीचे से शुरू किया हो, या फिर जो भी रीजन रहा हो, लेकिन उसको मतलब उसको भी प्रॉब्लम रहती है, मतलब अपनी तरह की. मतलब हो सकता है कि वो बहुत रिच हो पैसे से, पर अदर चीजों की प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ी हो, और जो बंदा बहुत ज्यादा रिच नहीं है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो. तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह रहती है. तो शिवानी, ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि आपने बोला कि आपके कोच हमेशा आपको इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी जब कॉलेज लाइफ खत्म होती है और जब हम अर्निंग शुरू करते हैं, तो बेसिकली लोगों को ये लगता है कि अब हमारी अर्निंग कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई है, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है. लाइक अब क्या होगा पढ़ाई करके, अभी जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब काफी है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो आप जैसे कि बिजनेस में हो, अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके पास एक मेंटोर या एक कोच है, राइट? तो कोच का होना कितना जरूरी है, या मेंटोर का होना कितना जरूरी, इवन आप अर्निंग कर रहे हो, इवन आप जॉब में हो, इवन आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो, तो क्या लगता है आपको? क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आंसर, अगर कोई इंसान को ऐसा लगता है कि आपको लर्निंग नहीं करनी है और आपकी लर्निंग स्टॉप हो चुकी है, तो दैट मीन्स आप ये समझ लो कि यू विल बी स्टेइंग एट द पॉइंट ऑफ 10,000 15,000 फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. दैट्स इट. अगर आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, सो लर्निंग इज द पार्ट जो मरते दम तक नहीं जाने वाला है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट 3 years ऑफ माई जर्नी इन September, एंड आई फील दैट देयर इज सो मच आई नीड टू लर्न राइट नाउ. देयर इज सो मच. लर्निंग इज द पार्ट जो कभी लाइफ में खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. एंड यू हैव टू बी फॉल इन लव विद लर्निंग. लाइक आई लर्न एवरी डे मैं कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ. सो लर्निंग इज द पार्ट जो कि कभी भी कहीं नहीं जाएगा. यू हैव टू लर्न एवरी डे, यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स एवरी डे, एवरीथिंग. लाइक आफ्टर एवरी वीक समथिंग इज गोइंग टू कम एंड यू हैव टू लर्न दिस, राइट? पहली चीज. दूसरी चीज, कोच का होना कितना ज्यादा जरूरी है. 101% it's important. I can say like 1,000 to 2,000%. My coach has a coach. His coach has a coach. Okay. Everybody in this life, like which you see that successful person, everybody has a coach in his life. Okay. It's not about business coach. Some people have relationship coaches as well, like health coaches. Every aspect of your life, you need someone to push you to handle your life in a way you want, right? So coach is something like, coach क्या होता है? Like मैं आपको बताती हूँ, जब स्टार्टिंग में लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, आपको कोई चाहिए होता है, स्पेशली द ऑनलाइन जर्नी. आई एम सेइंग, आप ऑनलाइन जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो ऑनलाइन चीजें ऐसे नहीं होती. आप इंस्टाग्राम पे आके आपने बोला कि मेरा 25,000 का कोर्स है, किसको बाय करना है? Nobody is going to buy from you. Nobody knows you. You have to build the trust. Okay? आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है. उन सारी चीजों में टाइम लगता है. ऐसे नहीं कोई भी इंसान आपको 50,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल के जाएगा. This is not going to happen. Like people have this thing in their mind, but this is not going to happen. So the number one thing is, starting में बहुत rejections मिलते हैं, बहुत फेलियर्स मिलते हैं, बिकॉज यू डोंट नो द राइट स्ट्रैटेजीज. आपको राइट स्ट्रैटेजीज नहीं पता होती, आपका राइट माइंडसेट नहीं होता. सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजीज से नहीं आती है, सक्सेस माइंडसेट से आती है. और माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज आपको कोच दे सकता है, अकेले आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. इफ यू फील, अगर मैं सोचूं कि आज मैं अगर डिजिटल कोचिंग जर्नी अगर मैं ट्राई कर रही होती, लाइक आई वेस्टेड ऑलमोस्ट 4-5 months to keep clean. मैं खुद कर लूंगी. I was like trying to be over smart that I'll be doing it on my own and I'll be like, I have the followers, I have the community, I can do it on. I failed. I totally failed. क्योंकि
The only point was there was nobody to guide me. लेकिन जब मैंने अपने mentor के साथ connect किया, he guided me the like not only with the strategies but with the right mindset. सक्सेस के लिए आपको बहुत चीजें चाहिए होती हैं. आपके मॉर्निंग रूटीन्स कैसे हैं, आपका टाइम शेड्यूल कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितना ग्रोथ के बारे में सोचते हो, आप कितनी स्ट्रैटेजीज यूज करते हो, किस एनर्जी से आप अपने लोगों के सामने आते हो. ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स. इट्स नॉट लाइक कि कोई मैजिक होता है, कोई घुमाता है. आपको एक स्ट्रैटेजी मैंने दी कि इंस्टाग्राम पे 2 स्टोरी डालो और आपका कोर्स 50,000 लोग खरीद लेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू strategically with a right mindset, and that's only जो आपको एक अच्छा कोच दे सकता है, जो आपको पूरा हेल्प कर सकता है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. राइट. तो ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी है कि एक स्ट्रैटेजी होती है जो पर्टिकुलर होती है, पर हर किसी इंसान के साथ उसका अपना एक अलग चीजें या फिर एक अलग कुछ बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी, उसकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी वर्क करती है. मतलब उसे ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है कि उसके लिए क्या काम कर रहा है, उसके लिए क्या बेस्ट है. जैसे कि लाइक डॉक्टर्स होते हैं, मेडिसिन तो होती है लेकिन हर इंसान की बॉडी पे मेडिसिन अलग रिएक्शन करती है. तो यू कैन नॉट गिव एवरी पर्सन अ सेम मेडिसिन फॉर सेम प्रॉब्लम. तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजीज का भी ऐसे ही होता है कि आप एक वो गाइडेंस के लिए होती है, गाइडलाइंस के लिए होती है कि आप कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन वो आप खुद करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो करते करते ट्रायल एंड एरर करते हुए आपको ये पता चलेगा कि वो स्ट्रैटेजी कितने % आपके केस में काम कर रही है. हो सकता है कि वो आपके केस में काम करे बहुत ज्यादा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ना करे, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छी हो. So that's how it's important to connect with the coach. Like many a time I know that my strategies work for all the students. Like, but sometimes if it doesn't work, so I know like there are number of strategies. There are thousands of strategies which you can use, right? It's just a matter of but आप जब खुद करते हो तो आप बहुत ज़्यादा time waste करते हो in trial and errors. Like आप खुद ही लगे हुए हो, like you're trying, you're wasting your years and years, right? But when you have someone who can guide you, who have tested out all the things and who know how things work, so this is so easy. Like connect with someone, they will guide you, they will teach you, and simply earn the money. That's it. You don't have to waste your time in trial and errors anymore. Like when you have someone जो आपसे experienced है, जो already कर चुका है, तो why not hire somebody and do it? That's it. It's just the matter of mindset that are you ready to invest in someone or not. People don't have the mindset to invest. They feel that investment नहीं करनी है लेकिन पैसे चाहिए. So this is not possible. Yeah. हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है. लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं. मतलब कि अगर कॉलेज होगा, फॉर्मल एजुकेशन होगा, तो वहाँ पे वो लाख्स रुपीज इन्वेस्ट कर देंगे. पर जब उन्हें अर्निंग की बात आती है तो उन्हें लगता है कि इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है. मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट तो मतलब मुझे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस जो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं, जो चीज आपने कभी करी नहीं, वो चीज में तो आपको सीखना पड़ेगा. उसके लिए भी आपको मेंटोर या टीचर्स या फिर गाइड चाहिए जो आपको सिखाएगा, जो आपको बताएगा. और मुझे लगता है कि बिजनेस में तो ज्यादा एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि सच में वो चीज कर रहे हो. कॉलेज वगैरह में जैसे कि अगर हम MBA की पढ़ाई कर रहे हो, कोई हमें अकाउंट्स पढ़ा रहा है या फिर कोई हमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है, तो वो टीचर एंटरप्रेन्योर नहीं होता है. ही इज जस्ट गिविंग द बुकिश नॉलेज. पर अगर बिजनेस में कोई मेंटर होता है तो वो उस चीज को कर चुका होता है. मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात करें तो आप इंस्टाग्राम कोच हो, तो डेफिनेटली आप वो सारी चीजें बताओगे जो चीज आपने करी है अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपनी चीजों के लिए करी है. तो आपको ये भी पता होगा कि प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, प्रैक्टिकली क्या चीज होता है. तो चीजों को ज्यादा रिलेटेबल आप बता सकते हो, रेदर देन अगर मैं कुछ बुकिश या कोई बुक, हो सकता है कि फ्यूचर में इंस्टाग्राम की भी कोई बुक आ जाए और वो कोर्स में इंक्लूडेड हो जाए कंप्यूटर्स की तरह, तो ये भी हो सकता है. लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, आई गेस. Exactly. Practical is very important. Plus, if you feel that if you are not ready to invest money in yourself, so how do you feel that somebody will invest money in you? That's so simple. अगर आज आप अपने में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो आप में आगे जाके कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा. Some people come to me and they say,
I wanted to become a coach, but I'm not ready to invest. And I asked them कि आप coach बनना चाहते हो, फ्यूचर में आप चाहते हो कि लोग आपके पास आए, आपको पैसा दें, लेकिन आप अपने आप में इन्वेस्ट नहीं, लाइक आप किसी कोच को पैसे नहीं दे सकते, तो आपको कोई क्यों पैसे देगा? लाइक व्हाई एनीबडी विल गिव यू द मनी व्हेन यू आर नॉट रेडी टू अपग्रेड योर स्किल्स एंड यू आर रेडी टू इन्वेस्ट? पहले आपको खुद का माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, पहले आपको खुद के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. लाइक राइट नाउ आई हैव इन्वेस्टेड इन अ हाई टिकट प्रोग्राम, लाइक इट्स अ वेरी हाई टिकट प्रोग्राम एंड आई एम लर्निंग दैट हाउ टू स्केल दिस कोचिंग मॉडल, और मैं वो सारी चीजें कर रही हूँ. बट if I don't have a mindset कि मुझे ग्रो करना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो जिस लेवल पे आज मैं हूँ मैं उसी लेवल पे रहूंगी. बट दिस लेवल is nothing for me. मुझे बहुत आगे जाना है, तो obviously I need to invest. There is nothing you cannot get anything in free of cost. कि कोई घर आके आपको solution देगा कि this is a solution, please work. So ऐसा कभी भी नहीं होगा. And people are like, जो लोग वो YouTube पे videos देखते हैं that how to earn money और 6 steps to earn money, रातों रात पैसे कैसे कमाने, और ये सारी चीजें वीडियोस जो आपको बताई जाती है YouTube पे, that's all scam, that is not true. और कोई भी YouTube पे आपको आपका strategic correct formula लाइफ में कभी नहीं बताएगा. That's all in their paid programs. It's just to attract you, ताकि आप लोग attract हो, but definitely everything will be in the paid. That's just other things to attract. That's it. कोई भी आपको फ्री में नहीं बताएगा. Why anybody will tell you in the free? Obviously everybody is there to earn money. So money is the more priority. There's number one thing which you need to look over, and everything. Yeah, सबके मतलब हर चीज आपका like step by step formula is secured for the paid program. Everything else is on internet. Like anything you can just search and you can get it from there. Right. और फ्री की बात करें तो फ्री में अगर हमें कोई शायद डायमंड भी ला के दे दे तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं. So अगर when कहते हैं कि when you pay then you pay attention. So इसके लिए जरूरी है कि आप पे करो तो आप उसको उतनी शिद्दत से सीखोगे. तो शिवानी, एज इंस्टाग्राम कोच हो आप, तो कुछ चीजें इंस्टाग्राम से रिलेटेड पूछूंगी. I'll say that I am basically not an Instagram coach. You can say that I'm not working specifically on Instagram because I am a business coach. Basically, I'm helping the coaches, but my strategies are not only limited to Instagram. Like it can be on any other social media platform, like mainly the Facebook and Instagram. It's not about Instagram. It's about business. That how to make business. That's it. कि आपको आपके कोचिंग बिजनेस को कैसे बढ़ाना है. अब वो कुछ भी हो सकता है, वो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हो सकता है, वो फेसबुक के थ्रू भी हो सकता है, वो लिंक्डइन के थ्रू भी हो सकता है. इट कैन बी हैपन टू अकॉर्डिंग टू एनी प्लेटफॉर्म. ओके, ग्रेट. सो फिर भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत ही कॉमन है. ट्रू. तो इंस्टाग्राम पे लाइक आजकल एक बहुत ज्यादा लोगों में कंपटीशन है, या फिर कहें फॉलोअर्स इंक्रीज करने का. आपने लोगों को लगता है कि उसके लिए लोग फेक फॉलोअर्स बाय करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं लाइक ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होते हैं. वो पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पे भी कुछ डीएम्स आते रहते हैं, सो बोलते रहते हैं, कुछ तो बोलते रहते हैं. तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि मतलब कि क्या है वो, मतलब क्या होता है वो. First of all, I'll say you that if you're running behind the numbers are not going to pay you. The number one advice which I'll give to anybody, like I am the true example of it. मेरे पास बहुत सारे followers थे, सारे सच, सारे organic. They were not the false followers, but I was not earning any money. मेरे पास बहुत followers थे, लेकिन मैं कोई पैसे नहीं कमा रही थी. तो it's a true fact, क्योंकि वो लोग मेरे ideal clients नहीं थे. They were not that persons जो लोग मुझे पैसे देंगे, जो मेरे कोचिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे. तो अगर आज मैं 2 लाख फॉलोअर्स खरीद लेती हूँ, ठीक है, बट माई मेन प्रायोरिटी इज मनी, हाउ टू मेक अ बिजनेस. लेकिन वो 1-2 लाख जो फेक प्रोफाइल्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द एनी मनी. नंबर के लिए इट्स वेरी गुड, आपको रखना है आप रखो, बट पैसे the fake number is not going to put money in your bank account, and the end what matters is money. क्योंकि आप जितना पैसा कमा रहे हो उतनी आप सक्सेस क्रिएट कर रहे हो, और उतना इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ में ला सकते हो जितनी आपकी सक्सेस होगी. सो दैट्स व्हाई मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, तो मैं और लोगों को मदद कर सकती हूँ और सक्सेसफुल बनने के लिए. मैं और जिंदगियां चेंज कर सकती हूँ और लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ. सो दिस इज हाउ इट प्लेज अ रोल. बट अगर मैं फेक फॉलोअर्स आज बाय कर लेती हूँ, and I come on a story and I tell that this is my program, but they are all the fake profiles, who is going to buy from me? So the number one thing which you need to understand, अगर आप Instagram पे, अगर आप अपने Instagram को एक business profile की तरह लोगे, then you will understand कि वो जो number है
वो रियल नंबर होना चाहिए, वो रियल लोग होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। व्हेनेवर यू आर लाइक व्हेन यू आर कमिंग इन अ स्टोरी, और अगर आप कुछ पुट कर रहे हो और कोई भी जना आपसे डीएम पे बात नहीं कर रहा है, कोई भी जना आपसे मैसेज नहीं पूछ रहा है, इट मींस या तो आपकी ऑडियंस गलत है या तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हो अपने बिजनेस पे, राइट? नाउ इफ आई पुट अ स्टोरी एंड इफ आई डू समथिंग, आई गेट मेनी ऑफ द डीएम्स एंड मेनी ऑफ द मैसेजेस. So it's all about business. So if you're doing a real business, you need the real audience. And if you're just to show number to the public or to make a fame or to show off, then go ahead. You can buy the fake followers. उससे कुछ नहीं होने वाला है. Dead profile, and definitely उससे आपकी ना organically profile increase होगी और बस वो number आप बढ़ाते रहो पैसे डाल के. It's nothing is going to happen. It's just a show off. किसी को भी पता लग जाता है, like anybody can see your engagement. Like अगर आपके पास 1 लाख ऑडियंस है and nobody is engaging on your content, so anybody can get it कि ये सब fake followers हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. But definitely, I don't know why people do this, but this is not a good strategy, and I never recommend to anybody or to my clients, to my students, not to go for that. Like अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अपनी real audience build करके दिखाओ. अगर वो 1-2 लाख की audience चाहिए, like make that much impact कि आपको 1-2 लाख audience follow करे. Okay, great. If you really wants to. Yeah. So शिवानी, कोचिंग बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, तो मतलब कौन सा स्टेप है? क्या कोई स्टेप होता है कि कहाँ से 1-to-1 कोचिंग वो शुरू करे, फ्रीलांस करे और फिर उसके बाद वो अपना कोर्स डेवलप करे? तो क्या एक बेसिक स्टेप्स होता है ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने का? I'll tell you number one thing. I don't recommend anybody to record a course at a first place. अगर आप बिल्कुल नए हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का, लोगों को पढ़ाने का, तो आप कभी भी कोर्स मत रिकॉर्ड करो, because it would be a failed product in the market. Like right now, मैंने कोचिंग स्टार्ट करी क्योंकि मैं लोगों के साथ लाइव जूम पे काम कर रही हूँ. लाइक इट्स 1-on-1 कोचिंग, इट्स ग्रुप कोचिंग. आई एम टॉकिंग टू पीपल, आई एम बिल्डिंग दिस, लाइक आई एम मेकिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर देम. अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वी आर मेकिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, वी आर प्रैक्टिकली वर्किंग, राइट? और मैंने देखा है कि कितनी बार लोग जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं. दे आर नॉट अकाउंटेबल इनफ, उनको बार बार अपडेट्स पूछने पड़ते हैं, दे डोंट टेक एक्शंस. तो ये सारी चीजें मैंने सीखी है. तो अब मैं फ्यूचर में जब एक कोर्स रिकॉर्ड करूंगी, आई विल मेक श्योर कि आई इंक्लूड द टाइप्स ऑफ वीडियोस जिसकी वजह से मुझे पता है जिस लेवल पे उनका मोटिवेशन टूट सकता है, वहां पे एग्जैक्टली क्या वीडियो थ्रो करना है टू ब्रिंग देम द मोटिवेशन इन देम. किस टाइम पे उनके माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है. आई विल इंक्लूड द मॉड्यूल्स इन माय कोर्स इन फ्यूचर व्हेन आई विल बी डूइंग इट. एंड आई नो कि मुझे पता है कि लोग खुद एक्शन नहीं लेंगे रिकॉर्डेड कोर्स में, तो किस तरीके से उनके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, आई विल बी डूइंग दैट इन माई कोर्स, सो दैट जो मेरा कोर्स है वो एक फेल्ड प्रोडक्ट ना हो. पहली चीज, क्योंकि आप रियल ऑडियंस के साथ काम कर चुके हो, आपको पता है उनके बारे में. लेकिन जब आप अपनी ऑडियंस को जाने बिना एक कोर्स रिकॉर्ड कर देते हो बस पैसे कमाने के लिए कि जल्दी पैसे आ जाएंगे, राइट? कि एक कोर्स बनाया और उसको 1,000-2,000 रुपए का रखा और उसको लाइक एक छोटी सी कॉस्ट में बेच दिया आप. बट to make it a big success, to make it a big success, like obviously future में मैं भी कोर्स ही बनाऊंगी. like I will be recording some part क्योंकि I am only the one person. मैं 24 घंटे ही है तो मैं हर किसी को अपना 1-on-1 टाइम नहीं दे सकती, तो कुछ पार्ट I will be also recording in future, but not right now in starting. पहले आप रियल ऑडियंस के साथ काम करो, मतलब एक बेस लेवल पे काम करो. सी व्हाट इज वर्किंग, सी व्हाट इज नॉट वर्किंग, स्ट्रैटेजीज काम कर रही है नहीं कर रही है, गेट द टेस्टिमोनियल्स, गेट दैट ट्रस्ट फैक्टर. ये सारी चीजें करने के बाद यू शुड गो फॉर अ कोर्स क्रिएशन. पहली चीज. दूसरी चीज, इफ एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट द कोचिंग बिजनेस, देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट. द नंबर वन थिंग व्हिच यू फील इज आपके पास सबसे पहले कोई स्किल होनी चाहिए. आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रेशर्स एंड द बिगिनर्स that I also wanted to become a coach, and then I asked them, okay, if you wanted to become a coach, what is the skill which you are thinking to teach people? I don't have any skill, I am a beginner. So I said, how you can even think to become a coach when you don't have any skill with you, right? You have to understand कि आप किसी की जिंदगी चेंज कर रहे हो. Coach, don't really take it as a joke. आप एक कोच इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग. आप किसी की लाइफ चेंज कर रहे हो, किसी को बिजनेस करा रहे हो, उनके पैसे, मतलब लाइक दे आर अर्निंग मनी, उनकी पूरी फैमिली है, ईच एंड एवरीथिंग. इट्स अ ब्लेसिंग, राइट? एंड if you're not good enough and you don't have any skill to teach people, so I really request guys,
पहले आप अपनी स्किल को अपग्रेड करो. चूज एनी स्किल, कोई भी एक स्किल चूज करो. इट कैन बी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रोथ, मेक मनी ऑनलाइन, कोई भी स्किल, फेसबुक एड्स, एसईओ, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, या फिर लाइक यू आर एन इमेज कोच. तो एनीथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इन, उस एक स्किल को पकड़ो, learn it, upgrade your skills, have some practical experience in that. It's just a matter of 3 months. 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता है किसी भी स्किल को आपको सीखने में और उसमें काम करने में. अगर आपको कोच बनने का बहुत ज्यादा शौक है तो स्किल्स को सीखो, 3-4 महीने उसमें काम करो, टेक द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड देन बिकम अ कोच. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट नॉट फॉर फ्रेशर्स. Truly, it's not for freshers and beginners who really don't have any experience, any practical experience with the, you know, with any of right. these. या Yeah. एग्जैक्टली So सही this कहा is- आपने. बिकॉज बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, यू नो, लाइक True. कोर्स शुरू कर देते हैं, कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता है कि क्या क्या करना होता है और वो कहाँ पे फेल हो रहे हैं, इवन उनको ये भी नहीं समझ में आता है. नहीं तो आता. जरूरी है कि पहले आप कोई स्किल चूज करें, उसमें एक्सपर्टीज लें, उसमें उसकी प्रैक्टिकल यू नो कोचिंग देना शुरू करें, 1-to-1 आप शुरू करिए, कंसल्टेंट, फ्रीलांसिंग, एंड देन आफ्टर मतलब बहुत दिनों बाद देन आपको लगता है कि हाँ यू वर्कड ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स. बिकॉज शायद रिकॉर्डिंग सेशन विल बी द वन वे सेशन, तो वहां पे हम अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो स्टूडेंट है, वो सब कुछ समझ जाएगा अपने आप ही. I have taken number of courses and I've never taken the action on that. Like, because there Yeah. is nobody to ask me that, Shivani, have you done your homework, or maybe have you done this task, and maybe have you done it. Like my coach used to ask me one question 10 times. Like in starting, I was so stubborn. I was not taking the action very fast. I was taking it, but was not very much serious. So he used to ask me again and again and again that, Shivani, is this done? Is this done? Is this done? So वो इतनी बारी पूछते थे जब तक मेरी चीज done नहीं हो जाती थी. So this is the number one thing of a coach. And I do the same thing with my students. Like जब तक उन लोगों को समझ नहीं आता है, I keep repeating it, and they are like, okay, now we have got it, now we have understood. So this is the main, like you can say, this is the main a good thing about the coaching, कि course में आपको कोई पूछेगा नहीं. It's like do it Exactly. yourself. We have done a recording, हमने आपको दे दिया है, आप उसको देखते हो नहीं देखते हो, we are not responsible for that. और आपको उससे Yeah. success मिलती है नहीं मिलती है, we are not responsible for that. But coaching and mentorship is something we are committed to get you the results. We are committed to get you that thing which we are doing. So that's the number one, like that's the major difference between a mentorship program and the recorded courses. या एंड सही कहा आपने. रिकॉर्डेड कोर्सेज मैंने भी 2-3 लिए थे और मैं यू नो शायद आज तक मैंने उसके पूरे वीडियोस भी नहीं देखे हैं. Exactly. तो ऐसा सबके होता साथ है. यही एंड होता है. गाइस ये बिल्कुल सही बात है. हम ले लेते हैं लेकिन हम बहुत लेजी होते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं. एंड यू नो जहाँ पे हमारे लाइव सेशंस होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे वो इतना पुश करते हैं, मतलब इतना True. ज्यादा करते हैं कि यू नो लाइक यू हैव टू टेक एक्शन. तो ये एकदम Correct. सही बात कही शिवानी आपने. तो शिवानी कुछ क्वेश्चंस आपकी लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहेंगे. व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ? My purpose of life, I can't just say this, but definitely I have lots and lots of things to do in my life, especially the number one thing for my family. Like I need to build a lots and thing, like I need to give them a life which is very comfortable for them, and because they have seen a lot in their life, a lot of struggles they have seen in their life. Even I have seen a lot of struggles. So I really don't want कि future में मैं वो struggles कभी देखूं. Like I am very much blessed that I am helping them. In this age I am supporting them. I am helping my family financially. So I am very much happy for that. But definitely I wanted to give them the life which they really deserve. So this is the number one purpose for which I'm working right now. Second thing, I have a dream that I really wanted to travel the whole world. And this is my number one, at least I need to travel each country like before dying. So this is my number one dream. And this is the number one goal which I remind myself every morning. कि I need this much money, I need to make this much impact कि exactly मैं अपनी ये dream पूरी कर सकूं for my family, for me, and the very important part is to make an impact, to make a very big name in the industry so that the people know that I have done something for the online industry and maybe I have changed many people's life. That's it. I just want this thing, these 2-3 things. But बहुत बड़ी चीजें हैं ये, but definitely I want it. Okay, great.
सो शिवानी, कुछ विमेन एंटरप्रेन्योर्स या विमेन्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? Women's के लिए I'll just say one thing that if you will say for online journey, आजकल every women is a like अधिकतर everybody is working right now, and the number one thing which I'll say, which I have learned from my mother, that she was a working lady, like she has worked for her whole life, like she was running her own boutique. तो मैंने उनसे ही सीखा है to simply to be independent. That's it. You should not, like, even if you are getting married और आप बाद में आपकी like you should not be dependent to anybody. Like women is something, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, they're dependent on their husbands or they're dependent on their children to get them money or to. I don't want this thing in my life. So this is the number one thing, that I really want this much success in my life so that I can do anything which I want. I don't want it to get dependent on my parents or my husband or my children. That's it. So first thing for women, I'll just say, be independent. Whatever you do in your life, at least do that much for yourself, that you don't need to ask for anything from anybody. That's it. Just make this one success for you. Great. So शिवानी, आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी, मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ. आई डोंट रिमेम्बर इवन मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी. तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मूवीज. आई रियली एम नॉट. सो आई डोंट वॉच मूवीज. ओके, ग्रेट. सो रिक्रिएशन एक्टिविटी, जब आप अपने काम से कभी फ्री होते हो या माइंड फ्रेश आपको करना होता है या कुछ क्रिएटिव या कुछ अलग अपने काम से हटकर, तो क्या करते हो आप? I go for a walk. I love walk. I love doing walk in evenings. So I go for a walk. Plus there are 2-3 songs which I used to listen. Like they are motivating songs only. तो वो अगर मेरा कुछ काम करने का नहीं मन करता है, तो I listen to some songs and maybe go for a walk, talk to some of my friends, and so these are the little activities which I do. Netflix, I don't watch Netflix. Somebody has written. That's not my type. Like I don't watch Netflix and these types of movies and everything. Like I don't love to waste my time on Netflix and everything. So I don't do that. Okay, somebody is asking, do you read books? I don't read books, but guys, I'll definitely say you should read books. My coach is like he has tried to push me a lot to read books, because books are something which can change your life. I can just say one thing, they can definitely change your life. I'm reading one book right now, like it's all about digital coaching only, but I'll suggest अगर आप लोग biographies को read कर सकते हो, and this is the thing which I've learned from my coach, लेकिन अभी तक मैंने भी implement नहीं करा है, but I will definitely request, क्योंकि I am trying to implement it in my life and I have seen that it really changes your life. That reading आप कुछ भी एलन मस्क की या फिर रसल ब्रंसन की स्टोरी या फिर जो भी ये बड़े लोग हैं, और इनकी अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे और आप देखोगे कि इनके फेलियर्स, ये लोग कितनी बड़ी लाइफ में फेल हुए हैं और तब इन लोगों को सक्सेस मिली है, देन आपको पता लगेगा कि सक्सेस क्या होती है. वी ऑलवेज से कि दे आर बिलियनियर्स, दे आर मिलियनियर्स, वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, एक दिन का इतना पैसा कमा रहे हो. अगर एक दिन आप उनकी जाके स्टोरी पढ़ो एंड देखो कि कितने फेलियर्स दे हैव सीन इन देयर लाइफ and what type of conviction they were having about their goals. Like you can say कि उनका belief इतना ज़्यादा strong belief था कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता था. So that is the point where they are right now in their life. So that is the only thing. we हमें 1-2 rejections मिलती है, we get demotivated और हम काम बंद करते हैं. तो ऐसे नहीं होता. So you just need to understand. So I'll just suggest that do read the books. I'm also not doing it, but I'll definitely do it. Right now I'm reading the book of a digital coaching, but definitely I'll be start reading the biographies. And this is the thing I'll also give the suggestions about. Okay, great. So thank you so much शिवानी. और एक लास्ट क्वेश्चन की जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, जो आजकल मोस्टली सभी मोबाइल्स यूज करते हैं, नेट पे रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी करते हैं, so उनके लिए क्या सजेशन होगा आपका? Number one thing, if you guys want to enter the world of digital industry, like digital marketing is the thing जो बहुत trendy है आजकल. But the number one mistake which I did in my life is I was just doing lots and like I was learning lots and lots of skills, like with SEO, with Instagram, Facebook ads, YouTube, like all the things. And this is not going to take you anywhere, guys. Choose one skill, one high income skill, and become as much expert as you can become in that. Like nobody can fail you in that particular skill.
because now I get to understand that you cannot become an expert in all the skills. तो आप एक ही चीज को like you just put one thing, like if you love Facebook ads को इतनी deeply study करो that nobody can beat you in the Facebook ads. और अगर आप SEO choose करते हो, so nobody can beat you in SEO. If you choose about the communication, so communication को deeply understand करो, but don't run behind 5-7 skills जो मैंने देखा आजकल youngsters करते हैं, like they are changing the skills one by one, जो मैंने भी किया. I also changed my skills many times, but now I get to understand अगर आप एक ही skill के ऊपर अपने 1 साल 2 साल अच्छे से आप अपनी जर्नी को करते हो, you can earn the hell amount of money in a month. Hell. Like there's no limit to earn a money. You can even charge $1,000 and $2,000, $3,000 from a single client for your particular service if you are an expert in that. So please, that's a request. आप डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल मत सीखो. मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है. प्लीज डोंट गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग. नोबडी कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी है कि आप कभी भी नहीं सीख सकते. लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो आई जस्ट से चूज वन स्किल एंड उसमें परफेक्ट बनो, बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट एंड जस्ट फॉलो इट एंड देन सी योर लाइफ आफ्टर 6 months. If you're committed, you can send me a message that you will really going to kill in your field, whatever you choose. I can assure you this. Right. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और एपिसोड अगर आपको देखने हैं तो हमारा प्रीवियस एपिसोड आप देख सकते हैं टीना मैम के साथ अबाउट कम्युनिकेशन एंड अपीयरेंस. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग.